Good morning, students. This is the second video of Computer Science Chapter 1, that is a computer system. Hope my previous video helps you to understand and learn many new things about computer. So, I am here again with more information about computer and its parts. But before moving ahead and start with today's topic, I think you should take a quick recap of the previous video, which helps you to revise whatever you have done in the first part of this chapter. So, in the previous video, you studied that computer is a machine and it is used almost everywhere. It works very fast and can do many jobs at the same time. The physical parts of computer that we can feel and touch are called hardware. The physical parts that are outside the CPU box and can be seen and touched easily without opening the system are external hardware, and the parts that are inside the CPU box are internal hardware, for which we have to open the CPU box. There are four main parts of computer. These are monitor, keyboard, mouse and CPU. Monitor is also known as VDU, that is Visual Display Unit, and so it helps us to see the things which we do on computer. Monitor looks like a TV screen. You have also learned that the information that we see on monitor is called soft copy. That means we can see it but we cannot touch it or cannot take in our hands. There are three types of monitors. These are CRT, LCD and LED monitors. Now, what are these? CRT monitors, that is cathode ray tube monitors. They contain vacuum tubes. They are big in size and consume more power. More power means more electricity. The second type of monitors are LCD monitors, that is liquid crystal display monitors. They have flat screen and consume less power than CRT monitors. And the third category of monitors are LED monitors, that is light emitting diode. They are thinner, lightweight and consume 40% less power than LCD monitors. And the best example of LED monitors we can see are the television sets which we see nowadays. After this recap, now we start with today's topic. So, the second main part of computer is CPU. You have studied this in class 2 also, that CPU is central processing unit of the computer, and so it is also known as the brain of the computer. It processes all the instructions given to the computer. It means that whatever we order, instruction का मतलब होता है order. Whatever we order computer to do, computer
processes that order first. और ऑर्डर कैसे करते हैं हम कंप्यूटर को? या तो उसकी किसी प्रोग्राम को क्लिक करते हैं, या डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, या फिर कुछ हम टाइप करते हैं. तो ये सब जो हम क्लिक करते हैं या टाइप करते हैं, तो ये सब क्या होता है? कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर होता है. ओके, I will explain this, the working of CPU, by an example. Suppose you want to draw and color a picture in MS Paint. Then what will you do? At first, you double click and open Paint. Second, you select shape from the shape box and draw it on the stage. Then the third step that you will do is you select a color and click on fill bucket tool, and at last then you click inside the object to fill your selected color in the shape. ऐसे ही करते हो आप पेंट में. पहले आप पेंट को खोलते हो, फिर कोई शेप सेलेक्ट करते हो, फिर उसके बाद कलर सेलेक्ट करके फिल बकेट टूल पे क्लिक करते हो और उससे उस शेप के अंदर कलर फिल कर देते हो, है ना. यही स्टेप बाय स्टेप करते हैं हम. देन अब ये सब क्या है? व्हेन यू डू ऑल दीज स्टेप्स वन बाय वन, यू गिव ऑर्डर विद एवरी क्लिक. क्या मतलब हुआ इसका? कि आप जब स्क्रीन पर क्लिक करते हो या कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करते हो, दैट मीन्स यू आर गिविंग ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन टू द CPU. तो CPU क्या करता है? जल्दी से उसकी प्रोसेसिंग का काम शुरू कर देता है. एंड आफ्टर प्रोसेसिंग योर ऑर्डर, it shows the result on monitor. CPU can also do calculations, means it can easily solve mathematics. Other than doing work, processing work and doing calculation, it can also store large amount of data, means whenever you save your work, CPU saves it in its memory in the form of file. जब भी आप कुछ भी आपने जो किया है, चाहे पेंट में आपने पेंट किया हो या वर्ड पैड में टाइपिंग की हो, तो जब आप उसे सेव करते हो तो वो कहाँ चला जाता है? कंप्यूटर की मेमोरी में, और कंप्यूटर उसको एक फाइल के फॉर्म में अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है. फॉर डूइंग सो मच ऑफ वेराइटी ऑफ वर्क, CPU is internally divided into 3 parts. So, I will now explain and discuss the main parts of CPU. As you can see in the picture given here, CPU is divided into 3 parts: control unit, memory unit, and arithmetic logic unit. Now you might be wondering, what are these and why CPU is divided into these 3 parts when its only work is to process all the instructions. मतलब जब CPU का काम सारे ऑर्डर्स को प्रोसेस करना होता है, तो फिर CPU इन 3 पार्ट्स में क्यों डिवाइड होता है? Okay, to explain this, I want to ask a question to you. Can you name the subjects which you will going to study in class 3? Yes, English language, English literature, Hindi language, Hindi literature, maths, general science, social studies, computer science, and art. Can you think why all the subjects are taught by different teachers? Why can't one teacher teach all the subjects? The reason is that all the subjects are different from each other. Every subject has its own concepts, and so each subject is taught by different teachers according to their departments.
Just like that, CPU also has to do variety of jobs. It has to process variety of orders given by you. And so it is divided into three main sections. Now, I will explain you each of these sections one by one. The first section of CPU is MU, that is memory unit. Whatever is opened or saved in computer, CPU first take that file to the memory unit to be processed. जैसे आपने पेंट खोला, ठीक है, तो CPU पहले उसे मेमोरी में ले जाता है ताकि आप इस फाइल पर काम कर सको, क्योंकि काम करने के लिए कंप्यूटर को जगह चाहिए ना. किसी भी, जैसे पेंट खोला, आप खुलने के लिए तो जगह चाहिए, तो उस जगह को वो उतनी मेमोरी दे देता है. ठीक है, जैसे पेंट में काम किया है तो पेंट को वो खुलने के लिए उतनी मेमोरी दे देता है, और जब आप सेव करते हो तो वो फाइल के फॉर्म में उस पेंट की फाइल को सेव कर देता है मेमोरी में. आफ्टर दैट, फ्रॉम द मेमोरी यूनिट, CPU ट्रांसफर्स दिस फाइल टू कंट्रोल यूनिट. मेमोरी यूनिट के बाद वो फाइल कहाँ भेज दी जाती है? कंट्रोल यूनिट के पास. दिस पार्ट ऑफ CPU controls and manages the working of all parts of the computer. अब कंट्रोल यूनिट है उसका नाम, तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल करना और मैनेज करने का काम कंट्रोल यूनिट का होता है. जैसे हमारा ब्रेन का काम क्या होता है? हमारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करना, और सारे बॉडी पार्ट एक साथ ठीक से काम करें, मतलब उनको मैनेज करके रखना. Just like that, the control unit of CPU controls and manages all the parts of computer like keyboard, mouse, monitor, etc. Now, the third section is ALU, arithmetic and logical unit. As it is clear by its name, and I have already told you that CPU can do calculations also. ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि CPU कैलकुलेशन करना जानता है. So this work is done by ALU. तो ये सारा कैलकुलेशन वाला काम CPU का कौन सा पार्ट करता है? ALU करता है. It not only solves the mathematics, but it can also compare two values. Compare मतलब जैसे आप मैथ्स में ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू ये सब करते हो ना, ऐसे ही इसको कंपैरिजन बोलते हैं. कंपैरिजन भी बोलते हैं इसको, लॉजिकल ऑपरेशन भी बोलते हैं. तो ALU पार्ट जो होता है CPU का, वो ये सब करना जानता है. कंपैरिजन भी करता है और मैथ्स के कैलकुलेशन भी करता है. CPU can compare two numeric values, so ALU performs all arithmetic calculations like addition, subtraction, multiplication and division. It also do logical operations like greater than, smaller than or equal to, etc. Now, the next main part of computer is keyboard. You all know this part of computer very well. It is used to type data and instructions into the computer. A commonly used keyboard means the keyboard that you used to see in a school computer lab or might be at your home contains 104, that is 104 keys. Have you seen keyboard carefully? It has so many different types of keys. So, now here I will show you pictures of types of keys on the keyboard.
The first type of keys are alphanumeric keys. The word alphanumeric is a combination of two words that are alphabet and numbers. So when I say alphanumeric, it means I am talking about alphabet keys and number keys. As you know, there are 26 letters or alphabets starting from A to Z. So, alphabet keys are also 26 in number. Now see the picture of number keys carefully. There are 10 number keys on the keyboard from 0 to 9. And these 10 keys are used to type any combination of numbers. Combination of numbers means जैसे अगर आपको 121 टाइप करना है तो आप क्या करोगे? 1 प्रेस करोगे, फिर 2 प्रेस करोगे, फिर 1 प्रेस करोगे. दैट मीन्स कि 0 से लेके 9 तक की तो कीज़ होती हैं, है ना. उसके अलावा अगर आपको डबल डिजिट के या 3 डिजिट के नंबर या उससे बड़े नंबर टाइप करने हैं तो हम इन्हीं नंबर्स को प्रेस करके वो नंबर्स बनाते हैं. जैसे अल्फ़ाबेट कीज़ में हम वर्ड्स बनाते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं. जैसे आप कॉपी में लिखते हो या अपना नाम लिखते हो तो क्या होता है, वो लेटर्स की कॉम्बिनेशन ही है ना. ऐसे ही नंबर कीज़ भी बहुत कुछ नंबर्स मिला के हम नंबर्स के कॉम्बिनेशन मतलब बिग नंबर्स भी टाइप कर सकते हैं. क्लियर. नाउ ये नंबर कीज़ जो होती हैं, नंबर कीज़ आर प्लेस्ड इन 1 रो अबव द अल्फ़ाबेट कीज़. आपने कीबोर्ड पे देखा है जहाँ अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं उन्हीं के ऊपर एक ही लाइन में नंबर कीज़ एक साथ इस तरीके से प्लेस होती हैं. एंड दे हैव स्पेशल कैरेक्टर्स. स्पेशल कैरेक्टर मीन्स जैसे क्वेश्चन मार्क या @ या परसेंटेज का साइन, ये सब स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं. देखो आप नंबर कीज़ वाली जो यहाँ पिक्चर दी हुई है इसमें भी नंबर्स के ऊपर कुछ अलग अलग तरीके के साइन और सिंबल्स हैं, इनको स्पेशल कैरेक्टर्स बोलते हैं. तो अगर ये दे आर प्रिंटेड ऑन द अपर साइड ऑफ नंबर्स, और इनको जब टाइप करना होता है तो क्या करते हैं, दे कैन बी टाइप्ड यूजिंग शिफ्ट की. सपोज आपको ईमेल एड्रेस लिखना है तो आप कैसे लिखते हो, जैसे मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूँगी, nidhi@gmail.com. तो वो @ का साइन कहाँ है, देखो 2 के ऊपर नंबर की देखिए दिख रही है, 2 के ऊपर जो सिंबल बना हुआ है वो @ का सिंबल है. ऐसे ही 5 वाली की के ऊपर देखो जो 5 नंबर जहाँ लिखा हुआ है उसके ऊपर एक सिंबल बना हुआ है वो परसेंटेज का है. ऐसे ही 9 और 0 में ब्रैकेट का बना हुआ है. तो these all are called special characters and they are printed on the upper side of number keys. They can be typed using the shift key on the keyboard. शिफ्ट की के साथ जब हम इन कीज़ को प्रेस करते हैं तो स्पेशल सिंबल्स टाइप होते हैं, और जब बिना शिफ्ट की के जब ये टाइप करते हैं, इन कीज़ को प्रेस करते हैं तो नंबर्स टाइप होते हैं. क्लियर. नाउ आफ्टर दिस below them there are 12 function keys also. देखो, you can already see in the picture, you can clearly see in the picture that these function keys are numbered from F1 to F12. फंक्शन है ना, इसलिए इनका नाम F से स्टार्ट होता है, तो इनका नंबर जो होता है वो F1 से F12 होता है. ठीक है. एंड they all are placed in the topmost row or line of the keyboard. कीबोर्ड के ऊपर सबसे ऊपर वाली जो रो होती है वो फंक्शन कीज़ की होती है. ईच फंक्शन की हैज़ पर्टिकुलर वर्क टू डू, और हर एक फंक्शन की का अलग काम होता है. अलग अलग एप्लीकेशन में इनका काम अलग अलग होता है. जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल F5, अगर आप F5 की प्रेस करते हो
तो ये कंप्यूटर को रिफ़्रेश करने के काम आती है। कभी कभी होता है ना, कंप्यूटर अटक जाता है या बहुत सारे प्रोग्राम्स हम एक साथ खोल लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ क्लिक कर लेते हैं, तो कंप्यूटर हैंग हो जाता है। उस टाइम पे अगर हम F5 की प्रेस करते हैं, फंक्शन की को प्रेस करते हैं, तो कंप्यूटर रिफ़्रेश हो जाता है और दोबारा नॉर्मली वर्क करना शुरू कर देता है। ऐसे ही F1 फंक्शन की जो है, इट इज़ यूज टू ओपन हेल्प बॉक्स। ये हेल्प बॉक्स ओपन करती है व्हेन वी नीड हेल्प while टाइपिंग इन वर्ड पैड और ड्राइंग इन पेंट एक्सेट्रा। आप जैसे पेंट में काम कर रहे हो या फिर आप वर्ड पैड में कुछ टाइप कर रहे हो और उस समय आपको किसी चीज़ के लिए, उसमें टाइप करने के लिए या ड्रॉ करने के लिए किसी हेल्प की ज़रूरत है, तो F1 फंक्शन की प्रेस करेंगे तो एक हेल्प बॉक्स खुल जाता है। उसमें उसके बारे में पूरी डिटेल दी होती है जो आपको हेल्प करती है किसी भी एप्लीकेशन में या प्रोग्राम में काम करने के लिए। सो ईच फंक्शन की हैज़ इट्स ओन डिफाइंड वर्क। हर एक फंक्शन की का अपना अलग अलग काम होता है। देयर आर 12 फंक्शन कीज starting from F1 to F12 and they are placed at the topmost row of the keyboard. Next type of keys are navigation keys. We can also call them arrow keys. There are 4 arrow keys on the keyboard. These 4 keys help us to move in all directions on the monitor or screen. For example, suppose you open a picture in TuxPaint. You might have seen sometimes the picture is much bigger than the screen. कभी कभी होता है ना, कोई पिक्चर हम ओपन करते हैं या अपनी कोई फ़ोटो ओपन करते हैं तो वो स्क्रीन से भी बड़ी दिखती है। तो अब पूरी की पूरी जब स्क्रीन से बड़ी दिख रही है तो एक साथ तो नज़र नहीं आएगी, तो स्क्रीन के ऊपर लेफ़्ट राइट या अप और डाउन मूव करने के लिए जो कीज़ काम आती हैं वो नेविगेशन कीज़ या एरो कीज़ होती हैं। इन दिस सिचुएशन एरो कीज़ हेल्प अस टू मूव ऑन द स्क्रीन in all 4 directions, that is right, left, up and down. That's why they are named as navigation keys, because the word navigation means to move or travel from one place or position to another. नेविगेशन जो वर्ड है उसका मतलब ही यही होता है कि एक जगह से या एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आना। तो जब हम एरो कीज़ को प्रेस करते हैं तो हम स्क्रीन पे राइट, लेफ़्ट, अप या डाउन मूव कर सकते हैं बिना माउस के या बिना क्लिक किए। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ कीज़ आर कंट्रोल कीज़. As their names are, they used to control and manages the working of keyboard, mouse with the monitor or screen. Like page up, जैसे देखो इस पे कुछ कंट्रोल कीज़ यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने दिखाई हुई है पिक्चर में, जैसे पेज अप, पेज डाउन। ये क्या करता है, इट विल टेक यू टू द टॉप और बॉटम ऑफ द पेज इन विच यू आर वर्किंग। ठीक है, जैसे आप किसी पेज पे काम कर रहे हो, वर्ड पैड में टाइप कर रहे हो और किसी पेज पे काम कर रहे हो, तो आप उस पर काम करने के टाइम अगर आपको जैसे एकदम जहाँ से पेज स्टार्ट हो रहा है वहाँ जाना है तो आप पेज अप प्रेस करोगे तो पेज के स्टार्टिंग में पहुँच जाओगे, पेज डाउन प्रेस करोगे तो बिल्कुल आपके पेज के लास्ट में आ जाओगे। ठीक है, तो पेज अप, पेज डाउन। ऐसे ही डिलीट की क्या करती है, इट डिलीट्स द वर्ड दैट इज टू द राइट साइड ऑफ द कर्सर के आगे वाला जो अगर लेटर या कुछ वर्ड हमें कुछ डिलीट करना है तो वो डिलीट की से होता है, या कुछ सेलेक्ट करके बिल्कुल हटाना है तो वो भी डिलीट की से होता है। इट इज़ यूज टू रिमूव द लेटर और वर्ड इफ टाइप इनकरेक्ट। Other than these keys,
control key, shift key also help to work and manage on computer screen with the keyboard. Control key, shift key, backspace, space bar, these all are special keys and they are also called control keys, क्योंकि ये हमारे जो उस पे मॉनिटर पे जो भी हम काम करते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करती हैं ये कीज़. देन यू माइट हैव नोटिस दैट न्यूमेरिक कीपैड इज प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड. ये दिख रहा है आपको न्यूमेरिक कीपैड, ठीक है. आपको ध्यान है ये कीबोर्ड पे किस साइड होता है? इट इज़ प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड, ठीक है. और इस पे क्या होता है? इट इज़ बेसिकली यूज द मोस्ट व्हेन यू हैव टू वर्क विद नंबर्स. जब आपको सिर्फ नंबर्स टाइप करने हैं या कैलकुलेशन करनी है तो ये कीपैड सबसे ज़्यादा काम आता है. जैसे कैलकुलेटर होता है, जब हमें कैलकुलेशन करनी होती है हम कैलकुलेटर लेते हैं, उसमें नंबर्स फटाफट प्रेस कर लेते हैं, प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न करना है, ये सब कर लेते हैं. ऐसे ही ये न्यूमेरिक कीपैड होता है कीबोर्ड के ऊपर. व्हेन यू टाइप नंबर्स इन फॉर डूइंग कैलकुलेशंस इट कंटेन्स. अब इस पे न्यूमेरिक कीपैड पे क्या कौन कौन सी कीज़ होती हैं? एक तो इसमें नंबर कीज़ होती हैं 0 to 9, दिख रही है आपको इस पे 0 to 9, ये 10 नंबर कीज़ होती हैं. उसके अलावा इस पे सिम्बल्स होते हैं कैलकुलेशन के लिए, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करने के लिए सिम्बल्स होते हैं. एक इसमें डेसिमल का सिंबल होता है, पॉइंट का सिंबल होता है, दिख रहा है आपको जिसके ऊपर DEL लिखा हुआ है ना. ये पॉइंट का डेसिमल का सिंबल है. जैसे आपको लिखना है 23 रुपीज़ 50 पैसा, तो आप कैसे लिखोगे? 2 और 3 वाली की प्रेस करोगे तो 23 बन जाएगा. फिर आप पॉइंट वाली की लगाओगे और फिर 50 लिखोगे तो 23 रुपीज़ और 50 पैसा बन जाएगा, 23.50. ठीक है, तो ये उसके काम आता है, पॉइंट लगाने के नंबर्स के बीच में. फिर उसके बाद इस पर क्या दी होती है? एक एंटर की भी होती है टू स्टार्ट द कैल. या तो प्रोसेस को स्टार्ट करती है एंटर की, और टू कम ऑन द नेक्स्ट लाइन, या फिर नेक्स्ट लाइन पे आना है तो उसके लिए भी एंटर की प्रेस करते हैं. So these are the types of keys which we have on the keyboard. These variety of keys help us to do variety of work on the on the computer, and these keys are in total 104 usually on the keyboard. The next main part about which I will explain here now is mouse. You all are familiar with this small device. आप सब इस छोटे से कंप्यूटर पार्ट को अच्छे तरह से जानते हो, है ना? Mouse is a pointing device. What does it mean? It means that it has a pointer which we can see on the monitor, and this mouse pointer on the screen moves with the movement of the mouse. जहाँ जहाँ हम माउस को हिलाते जाते हैं ये माउस पॉइंटर वाला एरो दिखाई देता है ना स्क्रीन पे, और ये माउस के साथ साथ मूव करता जाता है. It is used to point, select or move any object on the screen by dragging it from one position to another. मतलब माउस से हम क्या क्या कर सकते हैं? हम किसी फाइल को सेलेक्ट या ऑब्जेक्ट को क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं. अगर डबल क्लिक करते हैं तो उसको ओपन कर सकते हैं. किसी फाइल को या किसी प्रोग्राम को लाइक पेंट, मूवी, म्यूज़िक, किसी को भी हम माउस की क्लिक से ओपन या सेलेक्ट कर सकते हैं. और जब हम किसी बटन को जब हम उसको लेफ़्ट बटन को क्लिक करके किसी ऑब्जेक्ट या फाइल पे उसको वहाँ पे क्लिक करके माउस बटन को प्रेस रखते हैं और माउस को ऐसे ही प्रेस रख के मूव करते हैं माउस पैड के ऊपर, तो वो ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव कर जाता है. इसको ड्रैगिंग कहते हैं.
means to press and move the mouse on the mouse pad. Pressing the button that moves the object on the screen is called dragging. इससे हमें ऑब्जेक्ट को मीन्स किसी भी फाइल या फोल्डर को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन ले जाने में हेल्प मिलती है. यूजुअली अ माउस हैज़ 2 buttons and we call them left mouse button and right mouse button. It has one scroll wheel also placed in between left and right mouse button. लेफ्ट 2 बटन होते हैं माउस में, एक लेफ्ट माउस बटन होता है, एक राइट माउस बटन होता है. क्लियर? उन दोनों के बीच में एक व्हील जैसा होता है जिसको हम घुमा सकते हैं. ये क्या करता है, जैसे हम अभी एरो कीज से बात कर रहे थे ना कि और किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, ऐसे ही ये स्क्रॉल व्हील जो होता है वो स्क्रीन को अप और डाउन करने के काम आता है. स्क्रॉल का मतलब होता है घूमना और व्हील का मतलब व्हील का आपको पता ही है, वो वाला छोटा सा पहिया जैसा 2 बटन्स के बीच में माउस के ऊपर लगा होता है, जिसको अगर हम रोल करते हैं तो हम स्क्रीन में ऊपर या नीचे मूव कर सकते हैं. तो दैट इज कॉल्ड स्क्रॉल बटन ऑफ द माउस. सो नाउ विद द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ माउस we have covered and completed the explanation of 4 main parts of computer. I will talk about more input and output devices in the next lesson video of this chapter. Now, before finishing this video, I want you to recall the important points that I have explained you in this video. So, let's start with points to remember. You have studied in this video that CPU is the brain of computer. It processes all the instructions, means orders given to the computer by you. CPU is made of 3 main parts. These are MU, CU and ALU. Now, what are these? MU is memory unit that is used to store data and instructions. जो भी ऑर्डर हम देते हैं या जो भी डेटा मीन्स जो भी टाइप हम करते हैं या फाइल सेव करते हैं वो सब मेमोरी यूनिट में सेव होती है. नेक्स्ट पार्ट इज CU, कंट्रोल यूनिट, controls and manages the working of all the parts of computer. कंप्यूटर के सारे पार्ट्स जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सब जब हम एक साथ यूज़ करते हैं तो इनको कैसे कंट्रोल करना है, ये कैसे काम करेंगे, इनका सारा मैनेज करना और इनको कंट्रोल करने का काम CPU के CU यानी कंट्रोल यूनिट का काम होता है. द थर्ड पार्ट इज ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. It performs all arithmetic and logical operations. Means ये arithmetic means maths, that is common basic things like addition, subtraction, multiplication, division, ये सारे mathematical problems भी solve कर सकता है. and उसके अलावा logical operations जैसे टू वैल्यूज़ को कंपेयर करना, आर दे ग्रेटर और लेसर और इक्वल और नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे जो होते हैं जो हम मैथ्स में भी करते हैं, ये सारी चीज़ें CPU का कौन सा पार्ट करता है? ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. CPU के 3 पार्ट्स के अलावा कीबोर्ड is also a main part of computer that is used to type data and instructions into the computer.
A common keyboard has 104 keys. You have also studied that there are various types of keys on the keyboard. These are alphanumeric keys, means combination of alphabet keys and number keys. Then control keys like page up, page down, control, shift, enter. These all are control keys. Delete, insert. Then function keys are there. There are 12 function keys, F1 to F12, और इन सब के हर एक फंक्शन की का अपना अलग काम होता है. देन नेविगेशन कीज. नेविगेशन मीन्स मूविंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाना. तो ये जो डायरेक्शंस में अलग अलग जगह हमें स्क्रीन पे लेके जाती हैं नेविगेशन कीज, उनको एरो कीज भी कहते हैं. दे आर 4 एरो कीज टू मूव टू द राइट, लेफ्ट, up or down on the computer screen. Then there is a numeric keypad also on the keyboard placed on the right side of it, and numeric keypad contains number keys, then calculation symbols like addition, subtraction, multiplication, division, point key, that is decimal key, and enter key also there on the numeric keypad. Now in the last we studied about the fourth main part of a computer, that is mouse. Mouse is a pointing device. It is used to point, select and move any object on the screen with the help of mouse pointer that moves in the same direction as of the mouse. हमें स्क्रीन पे एक माउस पॉइंटर दिखता है जो माउस की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम माउस को जहाँ जहाँ हिलाते हैं स्क्रीन के ऊपर वो माउस पॉइंटर उसी जगह मूव करता है. उसी की हेल्प से हम किसी फाइल या प्रोग्राम को सेलेक्ट करते हैं या ओपन करते हैं या ड्रैग करके खींच के एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जा सकते हैं. सो माउस इज़ अ pointing device. Thank you students. With this, the second video of chapter 1 is completed. Please go through the video again so that you can understand the contents well. If you have any doubts, please ask your question and share your feedbacks also. Till then, take care and goodbye.